کہانی کے سٹارٹنگ میں ہمیں ایک لڑکی کو دکھایا جاتا ہے جس کو میز سے الٹا باندھا گیا تھا۔ اس کے پاؤں شدید لرز رہے تھے۔ وہ درد میں چیخنے کی کوشش کرتی ہے مگر اس کے منہ سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ دیکھنے پر پتہ چلتا ہے کہ کسی نے اس کے منہ کو زخمی کر دیا تھا۔ اس کے جسم پر بڑے بڑے زخم تھے جنہیں سلائی کر رہے تھے۔ یہ اس کا علاج کرنے کے لیے نہیں تھا بلکہ یہ بھی اسے اذیت دینے کا ایک نیا طریقہ تھا۔ ایک اس بیچاری لڑکی کے زخموں کو زخمی کرتا ہے اور دوسرا اس کے ٹانکوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اس کے ٹانکے دوبارہ سے کھول کے اس کے زخموں میں بار بار سوئی کو چبوتا ہے اور اس طرح سے لڑکی کو بار بار تکلیف دی جاتی ہے۔ اب منظر کٹ جاتا ہے اور ہمیں 1609 کا وقت دکھایا جاتا ہے جہاں پر دی کنگ ہنگری کا راج تھا۔ اس وقت ایلزابتھ پیٹریارک ہنگری کی بادشاہیت پر حکمرانی کرتی تھی۔ جینی ایک عورت تھی۔ اس کی خوبصورتی، بہادری، جرات اور قسمت کی بادشاہی بھر میں چرچے تھے۔ تمام لڑکیاں اسے اپنا رول ماڈل سمجھتی تھی جسے بھی وہ اپنے محل میں کام کے لیے منتخب کرتی ان لڑکیوں کو بھی بہت خوش قسمت سمجھاتا تھا۔ اس طرح سے آج ایک لڑکی جس کا نام لیڈی مارگریٹ ہے اس محل میں آئی ہے جسے ایلزابتھ نے خود اپنی ذاتی معاون کے طور پر منتخب کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لیڈی مارگریٹ اور خود اس کے خاندان والے بھی اسے بہت خوش قسمت سمجھنے لگتے ہیں۔ لیڈی مارگریٹ بھی شاہی خون سے ہے مگر مالی طور پر اس کا حال زیادہ اچھا نہیں ہے۔ ایلزابتھ کی خاص خادمہ ایوا لیڈی مارگریٹ کو خود اس کے گھر میں لینے آئی۔ لیڈی مارگریٹ خود محل آنے پر بہت زیادہ خوش تھی اور جب اس نے دیکھا کہ ایلزابتھ خود اس کا استقبال کرنے کے لیے نیچے آئی ہے تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا۔ اور اسی خوشی میں لیڈی مارگریٹ نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ اس کے ارد گرد سب کچھ کتنا عجیب تھا۔ یہاں کام کرنے والی ہر لڑکی پریشان تھی اور سب کی آنکھوں میں خوف تھا۔ اور پھر ایک خادمہ کچھ سامان لے کر وہاں سے گزرتی ہے جو غلطی سے گر جاتا ہے۔ جب وہ گری تو بہت بری طرح سے گھبرا جاتی ہے۔ اسے چھوڑ کر ایوا بھی بہت بری طرح سے گھبرا جاتی ہے اور جلدی سے اس خادمہ کے ساتھ ان چیزوں کو جمع کرنے لگتی ہے اور ان چیزوں کو جمع کرتے ہوئے وہ کسی نکیلی چیز سے اپنا ہاتھ زخمی کر لیتی ہے۔ بہرحال یہاں ایلزابتھ خود لیڈی مارگریٹ کا ہاتھ پکڑ کر اسے محل کے اندر لے کر آتی ہے۔ مارگریٹ ابھی اس صدمے سے باہر نہیں آئی تھی کہ وہ کوئین ایلزابتھ جس کے بارے میں اس نے کہانیاں سنی تھی آج اس کے سامنے ہے اور اسے ایک خاص مہمان کی طرح ٹریٹ کر رہی تھی۔ حالانکہ وہ یہاں بطور ایک نوکرانی کے طور پر آئی تھی۔ کوئین ایلزابتھ بھی مارگریٹ کو اس محل کی کہانی سناتی ہے جو کوئین ایلزابتھ کے شوہر نے اسے تحفے میں دیا تھا۔ جب کوئین ایلزابتھ کی شادی ہوئی تو وہ صرف 11 سال کی تھی اور انتہائی خوبصورت تھی جبکہ بادشاہ پورے ہنگری کے علاقے کا بہادر نائٹ تھا یعنی کہ سب سے بہادر سپاہی اور اسی وجہ سے اس کی جوڑی کو مثال دی جاتی تھی۔ مگر پھر خدا جانے انہیں کس کی نظر لگ گئی جس کی وجہ سے بادشاہ بیماری کا شکار ہو کر اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اس بارے میں بات کرتے ہوئے کوئین ایلزابتھ جذباتی ہو جاتی ہے اس لیے ایوا مارگریٹ کو اس کے کمرے میں لے جاتی ہے۔ یہ کمرہ بہت بڑا اور بہت شاندار تھا جہاں وہ ایوا سے کافی باتیں کرنے کی کوشش کرتی ہے مگر عجیب بات یہ تھی کہ ایوا اس کے کسی سوال کا جواب نہیں دے رہی تھی۔ وہ لیڈی مارگریٹ کو خاص سمجھتی اور خود کو معمولی سمجھتی ہے۔ پھر لیڈی مارگریٹ اس سے کہتی ہے کہ میں اپنے گھر میں تمام کام خود کرتی ہوں جیسے کہ ایک خادمہ کرتی ہے تو تم میں اور مجھ میں کیا فرق ہے؟ ایوا جواب دیتی ہے کہ تم جو بھی ہو تمہارا خون شاہی ہے اور میں ایک عام خاندان سے ہوں، ہماری دوستی کبھی نہیں ہو سکتی۔ بہرحال یہاں مارگریٹ ایلزابتھ کے بارے میں باتیں شروع کر دیتی ہے۔ اس کی تعریف کرتی ہے کہ وہ کتنی اچھی ہیں، اسے کتنا پروٹوکول دے رہی ہیں بغیر یہ جانے کہ ایوا کے تاثرات اس کے الفاظ سے بالکل مختلف ہیں۔ ایوا بغیر کوئی جواب دیے کمرے سے چلی جاتی ہے جس کے بعد ہم ایوا کو کوئین ایلزابتھ کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ وہ ابھی بھی لیڈی مارگریٹ کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ کوئین ایلزابتھ خوش تھی کہ مارگریٹ شاہی خون سے ہے اور اس سے بھی اچھی بات وہ خالص ہے۔ خالص یا شاہی خون ہونے کا کیا فائدہ یہ ہمیں آگے پتا چلے گا۔ اس کے بعد ایوا ملکہ کے چہرے پر کچھ فیس پینٹ لگانے لگتی ہے۔ یہ ایک طرح کا لال بلیشر تھا۔ ایوا پہلے یہ بلیشر ملکہ کے ایک گال پر لگاتی ہے اور دوسرے گال پر لگانے سے پہلے وہ ڈر گئی کیونکہ اس کا پروڈکٹ ختم ہو گیا تھا۔ ایوا خوف میں ملکہ کو بتاتی ہے کہ اس کا پروڈکٹ ختم ہو گیا تو ملکہ غصے میں پاگل ہو جاتی ہے اور اپنے غصے کو قابو کرتے ہوئے ایوا سے صرف یہ کہتی ہے کہ تم جانتی ہو کہ مجھے یہ چیز ختم ہونا پسند نہیں اور اس کی سپلائی تمہاری ذمہ داری ہے۔ اب ملکہ کوئی غلط کام نہیں کرتی۔ ایوا خوف میں اپنے ہاتھ کو دباتی ہے اور اس میں سے نکلنے والا خون برش کے ساتھ ملکہ کے چہرے پر لگانے لگتی ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جار میں موجود مایا کریم بھی خون تھا اور ملکہ اپنے چہرے پر خون لگا رہی تھی۔ سب کچھ بہت عجیب تھا مگر ان کے لیے نہیں، انہیں یہ سب کچھ نارمل
लगता है, बल्कि मलका ने ये खून अपने होंठों पर भी लगा लिया। इस सीन में हम देखते हैं कि लेडी मार्गरेट मलका के साथ खाना खा रही थी। लेडी मार्गरेट को इतना खाना देखकर बहुत हैरानी होती है, क्योंकि उसके घर में तो अब खाना बहुत मुश्किल से खाने को मिलता था। हत्ता कि इसकी 2 बहनें कॉन्वेंट भेज दी गई ताकि उनके खाने का खर्च कम किया जा सके। यहाँ मलका उसे कहती है कि मार्गरेट की सेहत का ख्याल रखा जाए और उसे ज्यादा से ज्यादा फल और शहद इस्तेमाल करने का हुक्म देती है, जो खून बनाने और इसे साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अब मलका एक खादमा से शहद लाने को कहती है। जब खादमा मार्गरेट को शहद पेश करती है तो मार्गरेट ने देखा कि इसके हाथ पर गहरे जख्म थे। जब मार्गरेट ने इससे पूछा कि ये जख्म कैसे आए तो इसने खौफ से जवाब दिया कि ये जख्म इसे किचन में काम करते वक्त आए हैं, और इस बात ने मार्गरेट को उलझा दिया। इसी दौरान मलका ने अपने कुत्तों को मार्गरेट से मिलने के लिए बुलवाया। ये कुत्ते बिल्कुल भी पालतू नजर नहीं आ रहे थे, वो जंगली कुत्तों की तरह बर्ताव कर रहे थे। उन कुत्तों को देखकर ना सिर्फ मार्गरेट बल्कि यहाँ की तमाम खादमाएं भी डर जाती हैं। मार्गरेट इस किले में बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि वो नहीं जानती थी कि इसके साथ मुस्तकबिल में क्या होने वाला था। वो यहाँ किसी भी तरह ईवा से दोस्ती करना चाहती थी, मगर ईवा की पहली जिद यही थी कि वो मार्गरेट से दोस्ती नहीं कर सकती, क्योंकि वो बराबर नहीं है। खैर, ईवा के जाने के बाद मार्गरेट सो जाती है और आधी रात को इसे किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है, जिसके बारे में वो बाहर आकर ईवा से पूछती है। तो ईवा कहती है कि कुछ नहीं, ये किला पहाड़ की बुलंदी पर है, तो अक्सर हवा की आवाज ऐसे महसूस होती है, तुम जाकर सो जाओ। ईवा की तसल्ली के बावजूद अजीब महसूस होता है, इसलिए इसने रोशनी लेकर तहकीक के लिए बाहर निकली, और जहाँ से रोने की आवाज आ रही थी इसने इस हिम्मत में चलना शुरू कर दिया। वो दरवाजा जहाँ से आवाज आ रही थी ये एक टेरिस था। जैसे ही मार्गरेट ने टेरिस में दाखिल होना शुरू किया तो वहाँ पर एक गार्ड आ गया। उसने कहा कि इस वक्त यहाँ पर जाना मना है, मार्गरेट के लिए नहीं। लेकिन अगले मंजिल में हमें दिखाया गया है कि टेरिस की दूसरी तरफ एक बहुत ही खूनी काम हो रहा था। एक लड़की को जंजीरों से बांधा गया था और भूखे कुत्तों को इस पर छोड़ा गया था। ये देखा जा सकता है कि ये पूरा मंजिल मलका खुद ऊपर से देख रही थी, और इसको देखकर इसे बहुत ज्यादा मजा आ रहा था, जिससे हमें मालूम हुआ कि मलका सिर्फ अपनी तफरीह के लिए वहाँ मौजूद थी। इस लड़की की जिंदगी खतरे में थी, और मलका ने ये पहली बार नहीं किया था, बल्कि इस किले में इस तरह की बहुत सी बातें पहले भी हो चुकी थी। जैसा कि हमने फिल्म के शुरू में देखा था, एक लड़की को मेज पर बांधकर अजियत दी जा रही थी, और मलका इस अजियत को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। और जो लड़की के जख्मों को बार बार खींचकर जख्मी कर रहा था वो कोई और नहीं बल्कि मलका एलिजाबेथ थी, और इसकी खास खादमा ईवा थी। और इससे हम ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मलका एलिजाबेथ के हर ऐसे जुर्म में ईवा भी बराबर की जिम्मेदार है। और इन तमाम चीजों से ये मालूम होता है कि इन्होंने मार्गरेट को किसी खास मकसद के लिए यहाँ पर बुलाया था, ताहम मार्गरेट को इसका कोई इल्म नहीं। और अब ईवा ने मार्गरेट को अपना दोस्त समझना शुरू कर दिया। जब इसने ईवा के हाथ पर एक जख्म देखा तो इसने फौरन से इसका इलाज करने की कोशिश की, मगर फिर इसने देखा कि ईवा के हाथ पर इस तरह के और भी जख्म थे, लेकिन इन जख्मों में इन्फेक्शन था जिसका इलाज लेडी मार्गरेट को मालूम नहीं था। इसलिए इसने ईवा डॉक्टर के पास जाने को कहा। ईवा ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि इसे मालूम था कि मलका एलिजाबेथ इसे कभी डॉक्टर के पास नहीं जाने देंगी, इसलिए ये सब कुछ करना या कहना बेफजूल है, बेकार है। मगर मार्गरेट, जिसे मलका एलिजाबेथ से ईवा को डॉक्टर के पास ले जाने की दरख्वास्त की, और मलका ने अच्छाई की हिफाजत के तहत इसकी इजाजत दे दी। डॉक्टर के पास जाने से पहले मार्गरेट ने ईवा से पूछा कि मैंने नोट किया है कि यहाँ पर हर खादमा के पाँव या कहीं ना कहीं गहरा जख्म है, ये कैसे मुमकिन है कि वो सब बीमार है और खुद को जख्मी कर सकती है। ईवा के पास इसे जवाब देने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए वो खामोश रहती है और आगे बढ़ जाती है। मार्गरेट ने ईवा की देखभाल करना शुरू कर दी। जब ईवा को भी मार्गरेट पसंद आने लगी, दिल में वो सोच रही थी कि वो इसके साथ वो सब कुछ नहीं कर सकती जो इसने बाकी लोगों के साथ किया। वो किसी भी कीमत पर मार्गरेट को यहाँ से निकालने का सोचती है, मगर इसे ये मलका एलिजाबेथ से खुफिया तौर पर करना था। पहले कि वो कोई मंसूबा बनाती, मलका एलिजाबेथ इसे हुक्म देती है कि वो मार्गरेट को लेकर आ जाए, और ये सुनकर ईवा खौफ से पागल हो जाती है, क्योंकि इसे मालूम नहीं था कि मलका एलिजाबेथ इतनी जल्दी मार्गरेट को अपना शिकार बनाए। कुछ सोचते हुए वो मलका के पास जाती है और मार्गरेट की जान बचाने के लिए वो मलका को समझाने लगती है और कहती है कि हम मार्गरेट के साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मार्गरेट एक शरीफ खानदान से है। बेशक इसकी माली हालत अच्छी नहीं, लेकिन
लेकिन लोग इसे जानते हैं और अगर मार्गरेट के साथ अगर कुछ हुआ तो इसका खानदान जरूर आपसे सवाल करेगा। ईवा से बात करते हुए मलका एलिजाबेथ इसे बताती है कि तुमने ये सब शुरू किया और अब तुम इस सब से क्यों डर रही हो। और हम लोग आगे देखते हैं कि बादशाह की मौत के बाद मलका बहुत ज्यादा बीमार रहने लगी थी गम की वजह से, और इसकी बीमारी ने इसकी खूबसूरती को इससे छीन लिया और इसी वजह से मलका एलिजाबेथ ने खुद को मारने का फैसला किया। और फिर इसके पास ईवा आती है जो इसकी देखभाल करती है। ईवा ने इसे मुतहर्रिक किया, इसकी देखभाल की, जिससे इसकी सेहत पहले से बेहतर हो गई, लेकिन अब इसके साथ खूबसूरती का भी मसला था जिससे वो खो चुकी थी और इस बदसूरती की वजह से वो डिप्रेशन में जाने लगी। और एक दिन जब ईवा ने गलती से इसे चोट पहुंचाई बाल बनाते हुए इसके बाल खींचे तो मलका गुस्से में पागल हो गई और इसने जो चीजें हाथ में थी उठाकर ईवा को मारना शुरू कर दी। इसने ईवा को इतना मारा कि ईवा का सर फट गया और खून निकलने लगा और खून के धब्बे मलका के चेहरे पर गिर गए। और जैसे ही मलका ने इन धब्बों को साफ करने के लिए आईने की तरफ रुख किया तो इन धब्बों को साफ करने लगी। जैसे ही इसका पुराना हुस्न वापस आ रहा था, इन धब्बों की वजह से इसके चेहरे पर खून का रंग बिल्कुल इसके पुराने ग्लो की तरह था। इस हकीकत को समझने के बाद मलका अचानक डिप्रेशन से बाहर आ गई और इसने खून को ब्यूटी प्रोडक्ट के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिसकी सप्लाई ईवा इसके लिए करती थी, लड़कियों को अजियत देकर। और इसी खून की वजह से कुछ वक्त के बाद एलिजाबेथ पहले से ज्यादा खूबसूरत लगने लगी। इसकी खूबसूरती वापस आ गई थी, लेकिन इसे बरकरार रखने के लिए अब मलका और ईवा ने लड़कियों को मारना शुरू कर दिया। अब मलका का मानना था कि जितना ज्यादा लड़कियों को मरने की वक्त अजियत दी जाएगी, इनका खून इतना ही खूबसूरती के लिए अच्छा होगा। इसी वजह से वो लड़कियों को बहुत ज्यादा अजियत दिया करती थी। हर रोज वो लड़कियों को मारने और अजियत देने के लिए नए नए तरीके ढूंढती थी और आहिस्ता आहिस्ता ये सब इसका शौक बन गया। अब ईवा मलका के साथ फंसी हुई थी, वो मार्गरेट को बचाना चाहती थी, मगर अब मलका का हुक्म था कि मार्गरेट को फौरन रूम में लाया जाए। अब मलका के हुक्म पर ईवा मार्गरेट के पास जाती है, लेकिन मार्गरेट को बचाने के लिए ईवा इसे पूरी हकीकत बता देती है कि वो किस तरह से लड़कियों को अजियत देकर इनका खून निकाल कर मलका की ब्यूटी के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो जल्दी से इस किले से बाहर निकल और पुलिस को सब सच बताइए। ये सब बहुत अजीब था। मार्गरेट को इस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। इन कहानियों को सुनकर मार्गरेट ईवा से डरने लगती है और ईवा की बात सुनने और इसकी हिदायत पर अमल करने की बजाय वो ईवा से भागने लगती है और इस खास कमरे में पहुंच जाती है जहां मलका इसका इंतजार कर रही थी। जब ईवा मार्गरेट के साथ यहाँ आई और इसने इस पर जुल्म किया और इसके शाही खून को अपने चेहरे पर लगा लिया और अपनी खूबसूरती को कई गुना बढ़ा लिया। यहाँ पहुंचकर एलिजाबेथ ने मार्गरेट को पकड़ लिया और मार्गरेट को बचाने के लिए ईवा ने खुद को मार डाला। ना तो वो खुद को बचा सकी और ना मार्गरेट को। एलिजाबेथ ने दोनों को जितना मुमकिन था अजियत दी। इन्हें ईवा की जरूरत नहीं थी, उन्होंने सिर्फ अपनी तफरीह के लिए ईवा को अजियत दी और इस तमाम अजियत के बाद ईवा भी मार्गरेट के साथ मर गई। अब वो खुद को मार्गरेट के खून से धो रही थी बगैर ये बात जाने कि कोई इस किले से भाग गया है। एक लड़की जो बिल्कुल मार्गरेट की तरह यहाँ पर बिल्कुल नई लाई गई थी, इसने किसी तरह से इस किले की तमाम हकीकत मालूम कर ली और इसने चालाकी से मलका एलिजाबेथ की डायरी चुरा ली और इस किले से भाग गई। इस डायरी में मलका ने इन तमाम लड़कियों के नाम लिखे थे जिन्हें इसने अपना शिकार बनाया था। ये डायरी पुलिस को देने के बाद पुलिस ने फौरन एलिजाबेथ को पकड़ लिया और इस सब के बाद पूरी दुनिया को मलका एलिजाबेथ की हकीकत मालूम हो गई। इसके तमाम बुरे कामों की वजह से इसके कमरे में कैद कर दिया गया और इसके कमरे के तमाम दरवाजे और खिड़कियों को बंद कर दिया गया। सिर्फ एक छोटा दरवाजा खुला छोड़ा ताकि खाना अंदर जा सके। यहाँ रहने के बाद भी मलका ने अपनी आदत नहीं छोड़ी। इसने खून से खुद को खूबसूरत बनाना नहीं छोड़ा, चाहे वो खून अब इसका अपना हो। इसने खुद को अजियत देना और खुद को खूबसूरत बनाना शुरू कर दिया क्योंकि इसका ख्याल था कि अब वो मर जाएगी और अपने शोहर के पास जाएगी और इसे खूबसूरत होना चाहिए। फिर कुछ साल गुजर गए और मलका को इस कमरे में मुर्दा पाया गया। किसी को नहीं मालूम कि इसको मौत कैसे हुई, लेकिन सब जानते थे कि ये कहानी हकीकी है। तारीख आज भी 1609 की मलका एलिजाबेथ को सबसे ज्यादा जालिम मलका मानती है क्योंकि कई सालों तक वो सिलसिलावार कत्ल में मुलविस रही और आखिरकार इसे इसके किए की सजा मिल गई। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।